Ever wondered how much safer your work at height operations could be? Imagine a world where every potential hazard is detected before it becomes a problem. Meet Tracker AI's smart PTZ camera system. This isn't just any camera, it's a game changer in work at height safety. Safety is paramount, right? It's the foundation of a productive and happy workforce. Despite stringent regulations, accidents still happen. Traditional methods often fall short in preventing these incidents. Enter Tracker AI's smart PTZ. This advanced system is designed to fill the gaps left by outdated safety measures. Tracker smart PTZ cameras deliver unmatched oversight so you can spot hazards before they become accidents. Offering 24/7 monitoring, it detects work at height safety hazards instantly, no matter the time of day or night. Think about it. Real-time monitoring, automated alerts and even fall detection. It's like having a safety manager who never blinks. Real-time alerts trigger immediate action, ensuring that potential dangers are addressed before they escalate. Automated surveillance significantly reduces human error, making your work site safer and more efficient. It even detects PPE and welding work compliance, ensuring that all workers are properly equipped. Ensure every worker goes home safe. That's the ultimate goal, isn't it? Ready to elevate safety? Stay safe, stay smart. With Tracker AI, you're not just upgrading your equipment, you're upgrading your entire safety culture. The Tracker Smart PTZ camera features advanced AI algorithms that are constantly learning and adapting to new safety challenges. With 360-degree rotation and high-definition video, it covers every angle, leaving no blind spots. You can decide which areas to cover, what to detect in each area through a simple online procedure without ever leaving your seat. Through the setup, you can monitor what is happening on the ground in real time remotely. In a recent case study, a manufacturing plant reduced accidents by 40% after implementing our system. Features include night vision, advanced monitoring for PPEs, work at height and welding activities, including real-time analytics, making it a comprehensive safety solution. Our team of experts ensures the highest quality and reliability, constantly innovating to meet your safety needs. Plus, our dedicated support team is here to assist you 24/7, ensuring that you get the most out of your investment. Join the revolution in safety with Tracker AI's smart PTZ camera system. It's time to take your safety measures to the next level. Visit tracker.live to learn more and get started today. Together, we can create a safer, smarter future for everyone. Hello and welcome to another episode of HackLab Podcast. In today's fast-moving world, safety often takes a backseat until an incident reminds us of its true importance. But real progress happens when safety becomes a shared mindset, not just a rule book. Joining us today is Mr. Kishan Bhargava, founder of Alaknanda Systems and a visionary in the field of fire safety and emerging energy safety technologies. With over 3 decades of experience spanning fire safety, electrical systems, and lithium-ion battery protection, Kishan sir brings a unique, grounded perspective on why safety awareness must start with each one of us. In this episode, we'll explore how a culture of safety can be built, not just in workplaces, but in homes, schools, and communities, and how awareness, innovation, and responsibility together can truly make safety for everyone a reality. Thank you, Kishan sir, for joining us today. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दें. Thank you, Amber. You have taken a very important topic. मेरा नाम ऐसे बताया किशन भार्गव. मैं फायर सेफ्टी में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ और डिज़ाइनिंग है, एग्जीक्यूशन है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी मैं लेके आया हूँ. Yes, sir. जैसे जैसे देश बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में सेफ्टी की ज़रूरत बढ़ रही है. तो ये आप अच्छा टॉपिक लेके आए हैं. हमारी जो फर्म है वो हर प्रकार के
इस टाइप के काम करती है और अवेयरनेस भी क्रिएट करती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना। राइट सर। तो सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यू might have often said that safety is a mindset, not a regulation, but how did that belief take shape in your career? देखो, फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सेफ्टी इज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर आदमी को समझना ज़रूरी है। सेफ्टी इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ फिजिकल हार्म। देयर आर टू थिंग्स, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी को मिसअंडरस्टूड करते हैं। एंड दिस इज हार्म फ्रॉम नॉट फ्रॉम ह्यूमन, फ्रॉम नॉन ह्यूमन रीजंस। और जब हम सेफ्टी की यहाँ बात कर रहे हैं, वैसे हम फायर सेफ्टी के, मगर एक कॉमन पब्लिक के लिए फायर सेफ्टी के साथ फॉल सेफ्टी, रोड सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी उतनी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे अस्पताल हो या मल्टीप्लेक्स हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइट। अब ये माइंडसेट है, रेगुलेशन नहीं है। सेफ्टी एक नॉर्मल चीज़ है। एक कोई भी, आप घर में हो, घर में आपको पता है कि आप कुर्सी में चल रहे हो, अगर हिल रही है आप गिर जाओगे। इसमें कोई रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक माइंडसेट है। मगर हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में हम सेफ्टी को रेगुलेशन समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कार ले लो या हेलमेट ले लो, ये रोड सेफ्टी का पार्ट है। हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेगुलेशन है, मगर ये तो बड़ी सेफ्टी है। तो ये, इसको जब तक हम माइंडसेट जो है हमारा सेफ्टी के लिए एक नॉर्मल माइंडसेट नहीं रहेगा और हम ये सोचेंगे कि रेगुलेशन है, तो इसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा। हम फायर की बात करते हैं, फायर सेफ्टी के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं, हम इतने साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सोचते हैं हमने एनओसी ले ली है, यानी हमने रेगुलेशंस कर दी है। इट इज़ नॉट दैट। ये आपको समझना है कि नहीं, सेफ्टी के बारे में समझना है कि सेफ्टी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन उस जगह रिक्वायरमेंट है। जिस जगह रिक्वायरमेंट है उसमें उस प्रकार की सेफ्टी होनी चाहिए। कार में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अभी मैं एक इंसिडेंट देता हूँ। अभी लास्ट वीक का, मेरे एक रिलेटिव थे, वो हाईवे में थे, वो जा रहे थे, ड्राइवर को नींद आ गई, क्या अर्ली मॉर्निंग का था, वो पीछे बैठे थे, बेल्ट नहीं लगाए थे, एक्सीडेंट हुआ, वो सीट से लड़े और बड़ी इंजरीज वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। क्या है, इसमें कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन आगे के लिए है, पीछे के लिए नहीं है, मगर सेफ्टी बेल्ट है। अगर माइंडसेट होता तो आदमी लगाता है, कह रहे जो है चीज लगा लो। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि सेफ्टी इज अ माइंडसेट, नॉट अ रेगुलेशन। और ये क्यों आया, ये कॉमन सब चीज़ें देख के आए कि भाई हम ये रेगुलेशन तो अभी आए हैं, पहले इस रेगुलेशन थोड़ा ना थे। पहले आदमी अपने आप सोचता था कि भाई इस जगह मत जाओ, यहाँ पे गिर जाओगे, रेलिंग नहीं है, रेलिंग से दूर चलो, रेलिंग सेफ्टी के लिए होती है। तो ये तो एक माइंडसेट ही था। अब वो क्योंकि रेगुलेशन हो गया तो आदमी सोचता है रेगुलेशन है वही करना है, जो रेगुलेशन नहीं हमको नहीं करना। ये गलत है। यस सर, यस सर। तो सर जैसे आपने बताया कि अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हमें लगेगा हम चेयर से गिर सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि हमें लगता है हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है अंदर और बाहर में। करेक्ट। वो हमारे दिमाग में रेगुलेशन आता है कि हेलमेट सरकार ने कहा लगाने को, खुद नहीं सोचते हैं ये मेरे ही वो है। तो ये माइंडसेट का खेल है और कुछ नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि माइंडसेट, इफ यू गो टू अमेरिका, व्हाई द माइंडसेट इज डिफरेंट। Sure, sir. Sure, sir. So, sir, moving on, what does safety is for everyone mean to you in practical terms, and how can individual contribute to a safer environment? This is a very broad thing. भाई सेफ्टी इस फॉर, जैसे मैंने भी कहा ना, हर चीज़ में सेफ्टी की ज़रूरत है। आप एक मैं एग्जांपल लूँ, आपके घर में सीढ़ी लगा के आपके घर में स्टूल के ऊपर कोई चढ़ा है, तो आप तर से कहोगे कि सुनो ऐसे नहीं करो, सीढ़ी लगाओ। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है ना, है ना। तो हर आदमी जो है वो अगर ऑब्जर्वेंट है तो वो सेफ्टी
को फॉलो करेगा और दूसरे को भी फॉलो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी सीट बेल्ट वाली बात की, मैं अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जाता हूँ, पीछे जो लोग बैठते हैं या मैं बैठता हूँ, सेफ्टी बेल्ट जरूर लगवाता हूँ। सिटी में नहीं लगवाता हूँ, भी शायद गलत करता हूँ, सिटी में भी लगाना चाहिए, मगर हाईवे में करता हूँ। राइट सर। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपकी बॉडी एकदम आगे जाती है। राइट सर। तो ये तो हर जने के लिए, हर चीज के अंदर है सेफ्टी। घर में है, सड़क में है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग Yes, बहुत sir. सारे प्लग लगा देते हैं, हम्म। पता है सबको गड़बड़ है, मगर वो सब हम्म। लगा देते हैं। राइट सर। तो और अगर आप सेफ रहोगे, प्रोएक्टिव रहोगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हाँ। कम हो जाएंगे, या अगर होंगे तो उससे नुकसान कम होगा। यस सर। अगेन इसमें हम सीट बेल्ट का ही करेंगे। सीट बेल्ट लगाई आपने, इसका मतलब नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, कभी भी हो सकता है, हुआ तो आप बच जाओगे। फायर सेफ्टी में अगर आपने एक्सटिंग्विशर घर में रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो, कभी हो सकता है। राइट। और भी जो हो सकता फायर सेफ्टी के, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के, रोड सेफ्टी के जो भी प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो रेगुलेटरी हो चाहे ना हो, तो वो इट हेल्प्स यू इन सेविंग योर सेल्फ। So if you are proactive in राइट। safety, it is definitely saving your life or somebody's life. राइट। राइट सर। सर जैसे आप बता रहे हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि क्या सेफ है, कैसे आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए या हेलमेट पहनना चाहिए। बट मान लो एक फैक्ट्री का फ्लोर है जहाँ पे हम अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, तो अब वो हमारे फैमिली मेम्बर तो है नहीं, तो अब यहाँ पे कल्चर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमें उनकी प्रोटेक्शन भी सोचनी है, जो कि उतना नहीं होता इंडस्ट्री में। ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये हम कई बार जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं, तो ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सेमिनार होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं लोगों से बोलता भी हूँ, जब आदमी एडल्ट हो जाता है ना, बहुत डिफिकल्ट है उसको कुछ समझाना। अंदर से समझ में आ गया तो आ गया, बाहर से समझाना इतना। मैं खुद देखता हूँ, हमारे भी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, हम लोग हेलमेट देते हैं, जूता देते हैं, सब्जी देते हैं। हम वहाँ से हटे हाँ जी। और उसने उतार दिया, अरे भैया बहुत गर्मी थी, है ना। ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी बचपन में अपब्रिंगिंग हुई है, तो हमको सेफ्टी के बारे में बताया नहीं गया। मैं एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हाँ जी। कि हमारे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ अमेरिकन है, तो मैं उनके साथ डिनर करने के लिए कहीं गया, तो वो उनका फायर का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं जिस होटल में ठहरी हूँ, वहाँ पर जो है जो एग्जिट डोर है उसको लॉक किया हुआ है। तो अब उस अमेरिका में थी, तो फिर हमने कहा देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इवन ये तो पढ़े लिखों में भी नहीं है, जो फायर एग्जिट डोर है उसको वो नॉर्मल डोर बना लेगा या कुछ गड़बड़ करके निकल लेगा। इफ यू गो टू अमेरिका, वहां पे ऐसा नहीं होता है, उसको पता है ये फायर के लिए है, वो नहीं खोलेगा उसको, और वो दूसरी जगह से जो नॉर्मल रास्ता है वहां से जाएगा। तो ये क्यों है? ये जो अभी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमारे कुली के हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये अगर चाइल्डहुड से समझ में आता है तो वो ऐसा, उसको बताने की जरूरत नहीं होती, वो करता है। और अभी अगर आप देखते होगे, जब से मैंने देखा दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हुआ, तो सेफ्टी इक्विपमेंट का बहुत चलन बढ़ा, क्योंकि वहां पर जरूरी होता है सेफ्टी का, पेनल्टी हो जाती है, ओके। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। आज हम लोग भी काम करते हैं तो कई जगह वो कहते हैं भाई पूरी सेफ्टी आप करो। नहीं तो पहले मजाक समझते थे, अरे पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि माइंड सेट नहीं है राइट हमारा। सर। और हम उसको समझा नहीं सकते। मतलब हम वर्कर को क्या है, जो जो वहाँ मैनेजर है, जो उसको भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आज के दिन भी है। तो यही है कि भाई बच्चों से अगर वो हम कंसेप्ट होता, घर में वैसे कंसेप्ट होता, तो सेफ होते। वो हमारे देश में, देशवासियों में नहीं है। हम लोग बहुत बहुत दिलदार लोग हैं, राइट। हम सोचते हैं हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं। राइट सर। राइट सर, बिल्कुल करेक्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस,
what are some of the most common gaps in public safety awareness that you have observed? अवेयरनेस का ही गैप है सबसे बड़ा, जो सेफ्टी में अवेयरनेस का गैप है। और जो सीरियसनेस होनी चाहिए टुवर्ड फॉलोइंग द रेगुलेशंस, रेगुलेशन ज़रूरी है और रेगुलेशंस को फॉलो करना को हमारे यहाँ, मैं एम टॉकिंग अबाउट इन इंडियन कंटेक्स्ट, वी बाय नेचर डोंट वांट टू फॉलो द रेगुलेशंस। Yes. हम उसके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं और कभी कभी इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि रेगुलेशन हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं और हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं। तो एक तो ये गैप है। मैं इसमें भी एक एक्सपीरियंस कहूँ, मैं अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ। मैं पहली बार जब अमेरिका गया तो मैं एक फैक्ट्री विजिट करने गया था, टेक्सास में थी, एकदम खाली जगह थी, खूब बड़ी फैक्ट्री थी, खूब बड़ी कार पार्किंग थी। तो वहाँ जब मैं एंटर घुस रहा था, तो जैसे फैक्ट्री होती है, फैली हुई फैक्ट्री होती है, तो जो एंट्री थी उसके राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ मार्क था फॉर फायर व्हीकल ओनली। अब मैं वहाँ खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि ये तो इतनी बड़ी जगह, फायर व्हीकल की तो बहुत सारी जगह कहीं खड़ी हो जाएगी। और वो जो ओनर था उस फैक्ट्री का, उसकी कार वहाँ नहीं खड़ी थी, उसके बगल में। वहाँ पे मेरे को ये चीज़, सेफ्टी का ये चीज़ क्लियर हुई कि ये देखो यहाँ पर वो एकदम रिमोट में फैक्ट्री, वहाँ कोई फायर वाला नहीं आने वाला। उस फैक्ट्री में 100-150 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 25, 30, 40, 50 कारें थी वहाँ पे। और इस पर ओनर ड्रिवन कंपनी थी। ओनर ने गाड़ी माना खड़ी की, दोनों तरफ खाली जगह है, वो खाली छोड़ी। क्या है? माइंडसेट्स एंड फॉलोइंग द रेगुलेशंस। उसके बाद मैंने और जगह भी अमेरिका में देखा है कि हाँ ऐसा है कि वो मेन रोड में, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर, अभी मैं एक फोटो देख रहा था कि देखा होगा एक्सटिंग्विशर रखा होगा, उसके ऊपर कपड़ा लगा होगा, है ना? जहाँ पे जो फायर डक्ट है उसमें वो बाल्टी और कूड़ा और ये रखा हुआ है ना? कहीं पर देखा होगा कि वो स्प्रिंकलर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर के ऊपर कुछ लगा दिया या उसमें से कुछ बांध दिया, डोरी बांध ली, कुछ कर दिया। ये बहुत बड़ा गैप है। और सिस्टम कुछ भी लग जाए, फिर जो लोग इसको मैनेजर्स हैं, जो मैनेज करते हैं या जो मेंटेन करते हैं, उनकी अवेयरनेस नहीं है। ये एक सबसे बड़ा गैप है। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि ये काहे के लिए ये सेफ्टी का आइटम लगा है। अगर मेरे समझ में आता है कि अगर ये ट्रेनिंग हो कि एक्सटिंग्विशर काहे के लिए है, मैनुअल कॉल पॉइंट लगा होता है, 90% ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि इसका मतलब क्या है, कब जरूरत पड़ती है। और आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि सब हाई राइज बिल्डिंग हो गई है, चाहे मल्टीप्लेक्स ले लें, चाहे ऑफिस ले लें, चाहे हॉस्पिटल ले लें, अपार्टमेंट्स ले लें। Yes, sir. और उस समय इनकी बहुत ज़रूरत होती है। ये अवेयरनेस का गैप है। और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, मगर हमने देखा है लोगों में उस अवेयरनेस को जानने के लिए भी छुट्टी नहीं है। वो सीखना नहीं चाहते। अरे यार, फायर की बात कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। रोड Yes. सेफ्टी की बात कर रहा है, हमको सब कुछ आता है। ये हमको एक बहुत बड़ा गैप अपने देश में लगता है। बहुत सारे कारण हैं, सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन। हाँ जी सर। सर जैसे आप एग्जांपल बता रहे थे, तो यूएस में या सिंगापुर में रात हो रही है, 12 बज रहा है रात का, और रुक पूरी जाती स्ट्रीट खाली है, रेड लाइट होती है एंड गाड़ी रुक जाती है, एंड दे आर ये तो वेटिंग फॉर हमारे द देश रेड में, लाइट टू मैं तो टर्न ग्रीन। दूर मत जाओ, श्रीलंका तो चले जाओ, कोलंबो में, देयर पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स। वहां देखोगे हाँ कि जी अगर रोड है, रोड में कोई ब्रेक नहीं है, एक तरफ जाता है तो वो लाइन में खड़े रहेंगे, कोई नहीं, मोटरसाइकिल वाला आगे निकल जाएगा, वो जो व्हाइट लाइन है उसको क्रॉस नहीं करेगा। ये हमारे देश में ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ये क्यों है? ये बहुत, दिस इज हाँ जी समथिंग सर। विच यू शुड रिसर्च, ऐसा क्यों? Right, sir. Okay, sir. Moving forward, fire safety is often reactive than preventative. So, how can we shift mindset towards more awareness and preparedness? देखो, एक तो चीज़ ये है कि सेफ्टी में एक माइंडसेट हमारा है कि आज तक हमारे साथ नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये हम लोग फायर का काम करते हैं, बहुत बार ये चीज़ हम देखते हैं, अरे यार आज तक तो आग लगी नहीं, तो पैसा वेस्ट है बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है सेफ्टी प्रॉपर ना होने का।
आपका क्वेश्चन है इट इज ऑफन रिएक्टिव देन प्रिवेंटिव. जस्ट Yes, तो sir. यस इट इज रिएक्टिव देन प्रिवेंटिव, क्योंकि वही हमारा माइंड सेट जो है ना वो वैसा नहीं है. हम प्रिकॉशंस लेना होता है वो हम नहीं लेते हैं. सेम मेरा कहना यही है कि इसमें ट्रेनिंग और एजुकेशन बहुत ज़रूरी हाँ है. जी. आई हैव सीन कि व्हेन यू प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, एक होती है ट्रेनिंग टिक मार्क वाली ट्रेनिंग. जो ट्रेनर भी है वो ट्रेनर को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो वो आदमी कहता है यार वहाँ चले जाओ अटेंडेंस लगा लो. वो सुनता नहीं है, वो समझता नहीं है. धीरे धीरे ट्रेनर भी ऐसी हो जाता है कि यार हमको इन्होंने बोला था तो हम ट्रेनिंग इनको दे देते हैं. तो ये जो माइंडसेट है ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है. और फिर मैं यही कहूँगा कि ये अपब्रिंगिंग है. स्कूल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. जो आपका आगे क्वेश्चन स्कूल के ऊपर आता है कि स्कूल में बहुत ज़रूरी है. ओके ओके सर. ओके. और सर मैं ये भी सोच रहा था कि आपने इस इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देखा है लाइक लास्ट 30 years. तो आपके क्या टेक अवेज हैं कि इंडिया में वी आर बिकमिंग मोर प्रो डेफिनेटली सेफ्टी आई मूविंग एग्री. फॉरवर्ड? आज से 30 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क है. अवेयरनेस आई है और यंगर लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में इसकी अवेयरनेस करते हैं. और दूसरा थोड़ा इंटरनेट और उसकी वजह से भी एडल्ट्स में भी आई अवेयरनेस. बिल्डिंग ओनर्स में आई अवेयरनेस आई है, पॉजिटिविटी आई है. इक्विपमेंट बेटर हुए हैं. जो इक्विपमेंट डिज़ाइन करने वाले हैं, इक्विपमेंट लगाने वाले हैं, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. छोटा नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. मगर हमारा देश बहुत बड़ा है, अभी बहुत काम बाकी है. हाँ जी. हाँ जी सर. हाँ जी. So moving forward, with new technologies like lithium ion batteries and EVs, what new safety challenges do you see ये emerging in everyday ये तो life? बहुत ज्वलनशील बात पकड़ Because लिया. ये न्यूज़ ये तो न्यूज़ आती बहुत ही रहती है. ज्वलनशील है क्योंकि आज के दिन हम लोग लिथियम बैटरी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं. अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में अभी तक लिथियम बैटरी फायर को सप्रेस करने का कोई एजेंट डेवलप नहीं हुआ. और जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इन इंडिया आर प्रमोटिंग लिथियम बैटरीज, दिस इज अ वेरी बिग रिस्क. एक है इंडस्ट्रियल रिस्क, दूसरी घरों में बहुत बड़ी रिस्क है. इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है. अब जैसे जस्ट टेक योर मोबाइल फोन विच एवरीबडी इज हैविंग 1 or 2 मोबाइल फोन एंड एवरीबडी इज कैरिंग दिस. इसकी चार्जिंग उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और इसका जो डिस्पोज ऑफ है वो भी सही तरीके से करना चाहिए. मगर अब ये क्वेश्चन उठता है कि सही तरीका क्या है. हमारे घर में भी आज 10 मोबाइल पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कहाँ देंगे. ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे कंट्री के अंदर है लिथियम का. टॉकिंग अबाउट ईवी, सेम प्रॉब्लम. वी डोंट नो, इवन आई हैव गॉट एन ईवी. डर रहता है हमको, बट क्या करें. ये एक चैलेंज है विच नीड टू बी एड्रेस्ड. Governments are working, scientific people are working on it, everybody is working on it कि इसका क्या solution होगा. सबसे बेस्ट हम ये चीज़ कर सकते हैं एज अ कॉमन मैन कि हम जो भी लिथियम बैटरी है उसमें जो प्रिकॉशंस हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, सही चार्जर से चार्ज करना है. अगर आपके पास ईवी है तो डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स एंड don't leave this thing charged on a bed or on any place where combustible material is there. बच्चों को साथ ना खेलें. बहुत सारे खिलौनों में आता है. यू हैव टू सी कि बच्चे उसके साथ मिस हैंडलिंग ना करें क्योंकि मैकेनिकल डैमेज से आग लग जाती है. और हमें लगता है कि अभी आगे चल के ऐसे एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे जो लिथियम बैटरी की वजह से होंगे. इट्स वेरी डेंजरस थिंग, वेरी यूजफुल थिंग, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनर्जी एफिशिएंट थिंग. बट फ्रॉम फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मली कुछ नहीं होता है. होता रेयर है मगर होता है. जो पहले ये रिस्क एग्जिस्ट नहीं करती थी. Yes.
Right, sir. So बहुत new मेजर रिस्क है। technology से new risk are coming up. Mhm. So, sir, how important is safety education at the school or community level is important in shaping the इंडिस्पेंसिबल, long-term cultural ये shift? बहुत ज़रूरी है। स्कूल लेवल में, पेरेंट्स लेवल में, कम्युनिटी लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में, फायर डिपार्टमेंट के लेवल में कर रहे हैं। कंटेंट में थोड़ी कमी है, थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बनाएं। मेरे हिसाब से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, फिल्म्स को प्ले कर सकती हैं। ये जो बहुत सारे जो शोज़ होते हैं, उसमें अगर सटल तरीके से हम सेफ्टी के बारे में भी बताएं, हम बहुत कुछ समझाते हैं। यंग पीपल एंड चिल्ड्रन कैच वेरी फास्ट। इसमें थोड़ा सा अगर ये लोग आगे आएं और इसका सब्जेक्ट को कवर करें और कहानी पर ही बताएं सेफ्टी के बारे में, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है और यही तरीका है और होगा मेरे ख्याल से। लोग देखेंगे, आप देखते होंगे कहीं पे भी है पीछे एक नॉर्मल चीज़ है, कहीं आप गिराते हैं तो देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगा, तो आपको कहीं सेफ्टी का एहसास होता है। एक लाल रंग की अगर कहीं आग लगती है तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग व्हेन यू लिसन टू सायरन ऑफ द फायर ब्रिगेड, अ रेड गाड़ी कमिंग, अरे अब सेफ्टी हो जाएगी। तो ये हमारे उसमें माइंडसेट में आ गया कि फायर ब्रिगेड वाला आ गया तो सेफ्टी हो जाएगी। वही माइंडसेट हमको बच्चों में डालना है और इसके लिए मेरे ख्याल से ये OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ समबडी इज लिसनिंग, इफ दे कैन मेक इसको सटल तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दें कि भाई आप गाड़ी में बैठे, उसने बेल्ट नहीं लगाई, उसने टोक दिया भाई बेल्ट लगाओ, ये हो जाता है। छोटी सी बात है। घर में काम कर रहे हैं, स्टूल में चले, नई सीढ़ी ला लेके लगाओ। इलेक्ट्रिकल में भाई वो मोबाइल फ़ोन सस्ता वाला वो लगा दिया, नहीं सही। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि ये बहुत ऑब्जर्वेंट है, जो जिसको हम कहते हैं जी जनरेशन और यंग लोग, और इनको सिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा डिपेंड होते चले जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम पर। क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं अब टॉल होती जा रही हैं, हर बिल्डिंग के अंदर कंबस्टेबल मटेरियल बढ़ता चला जा रहा है, आग लगने की संभावना बिजली में हम ज़्यादा। एक क्वेश्चन था ना कि 30 साल पहले और अब में क्या फ़र्क हो गया। एक बहुत बड़ा फ़र्क हो गया कि बिजली के इक्विपमेंट इतने थे ही नहीं, इतना एयर कंडीशनिंग थी ही नहीं, खुले खुले मकान होते थे, हॉस्पिटल्स खुले खुले होते थे, एयर कंडीशनिंग कूलर होता था, बहुत ज़्यादा होता था। अब रिस्क बहुत बढ़ गई है। तो ये एजुकेशन, क्योंकि यही जो लोग को हम एजुकेट करेंगे, ये कल ऑफिसर बनेंगे, ये मैनेजर्स बनेंगे, ये ओनर बनेंगे, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका साफ सीधा एग्जाम्पल हमने अमेरिका में देखा। वहाँ बच्चों को, हर बच्चे को पता है कि क्या हो जाता है, कैसे होता है, कि स्मोक नहीं होनी चाहिए और इंटीग्रिटी चाहिए इसके लिए। तो ये बहुत काम करना है। एंड सेम मेरा कहना यही है कि इसमें ट्रेनिंग, you started this podcast on safety. I think this is a very good effort to do it, provided more and more people will see and understand this. Right, sir. Thank you, sir. So, moving forward, can you share a real life incident or story that highlights how awareness and the lack of it made all the difference? मैं फायर की अपने घर की एक दुर्घटना बताता हूँ। हम लोग जब भी दिवाली में वो कैंडल चलाते हैं ना, पूजा करते हैं, तो हम जब फायर का काम, बहुत पहले की बात है, मैंने शुरू किया था, इतना ज़्यादा नहीं जानता था। तो हम लोग को होता है कि पूजा की और कैंडल लगा के और जला के चल दिए और पटाखे बजाने लग गए। तो हमने भी वो किया, वो टेबल के ऊपर रखा और ये नहीं सोचा कि कैंडल है, कैंडल गिर सकती है ना, और आपका पास में पर्दा है और सब चीज़ें वहाँ जलने वाली चीज़ें जल सकती हैं। तो हमारे घर में भी यही हुआ, मगर हम बच गए। मेरे बेटे को पानी पीना था, वो हम अपार्टमेंट में रहते हैं, वो बाहर से अंदर आया और अंदर आके देखा कि वो फैल रही है आग। तो दौड़ता हुआ गया, चिल्लाया उसने कि आग लगी है। हम अंदर आए, जब तक मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, तो पानी आने से किसी तरीके से बढ़ी नहीं थी। अगर मेरे ख्याल से 2 मिनट हम लेट हो जाते तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि, और आप देखिए आए दिन अपार्टमेंट्स में आग लगती, यही छोटी छोटी दुर्घटना होती हैं। कहीं दिया रह गया,
कहीं बत्ती रह गई, कहीं कुछ हो गई, और हम ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। वो कब हो जाता है ये पता नहीं। तो जब से हम एक्सटिंग्विशर रखते हैं, और हर आदमी से कहते हैं घर में एक्सटिंग्विशर रखो, क्योंकि आप पहले क्या घर में पानी नहीं आता था तो बाल्टी आल्टी में पानी रहता था। आज के अपार्टमेंट्स में तो पानी होता ही नहीं है, या तो फ्रिज में होगा पानी और या नल में होगा पानी, तो कोई स्टोर ही नहीं करता। तो ये एक चीज़ है, वहाँ से हमको समझ में आया, और हम भी अपने काम में हमने आ, अपने स्टाफ से भी बोलते हैं सही काम कराओ, क्योंकि अगर ये काम सही नहीं करोगे, उस सही नहीं की वजह से अगर आग लगती है, दुर्घटना हो जाती है, बच नहीं पाती, तो किसका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये इसने हमारी सोच बहुत बदली और फायर सेफ्टी, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की। हाँ जी सर. So, sir, what role should companies and industry leaders play in spreading awareness beyond compliance? द कंपनीज का मतलब जो मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस इक्विपमेंट, और कंपनीज इन जनरल? सर, इन जनरल जो नॉर्मल हम सारी जो सेफ्टी जितनी सेफ्टी कंपनी की है. तो रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है। सेफ्टी को सीरियसली लेना चाहिए हर कंपनी को। मेरा कंपनी से मतलब है, कंपनी के मैनेजमेंट से है कि करें, रेगुलर ट्रेनिंग करें, अवेयरनेस प्रोग्राम करें, एंड एट द सेम टाइम दे शुड आल्सो फॉलो द सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, फायर की मैं बात करूं, तो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, तो ट्रेनिंग बेकार है। आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबका नुकसान है। तो ये तो करना चाहिए। सेम हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर को कि उसको सिर्फ ये नहीं करना कि हमको बेच देना है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, दे शुड फॉलो इट। मैं अभी एक क्वेश्चन था कि फ़र्क, हाँ फ़र्क है। अब होटल्स वगैरह में स्पेशली मैं देखता हूँ, स्टार होटल में बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, अच्छे अपार्टमेंट्स में बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, मगर अभी काम बहुत बाकी है, बहुत सारी जगह अभी नहीं लेते हैं। तो इसमें कंपनीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, जैसे स्कूल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वैसे कंपनीज अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंपनी एक है, वो लोग इवेंट कराते हैं, तो उसमें वो फायर की ड्रिल भी करवाते हैं, जिसमें फैमिली वाले भी आते हैं। तो ये कई लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे कैन बी वेरी प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री। राइट सर. सर, अभी भी इंडिया में जो बिग कंपनीज हैं वो दे आर डूइंग मच मोर इन सेफ्टी, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू भी लगी हुई है दाव पे. लेकिन जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आई थिंक उनके लिए अभी भी प्राइस पॉइंट ज़्यादा मैटर करता है. तो डू यू ऑल्सो सी समथिंग लाइक दिस? नहीं, एग्जैक्टली। अगेन मैं ये कहूँगा, जो छोटी कंपनी भी हैं, जिसके जो मैनेजमेंट जो है उस चीज़ को समझता नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर वो उसको कॉस्ट से रिलेट करते हैं कि यार हमारा खर्चा हो जाएगा, हमारा फ़ायदा क्या है। बट आई सी चेंज इवन इन स्मॉल कंपनी, एंड दे ट्राई टू, सब कुछ नहीं तो कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फायर एक्सटिंग्विशर जैसी सिंपल सी चीज़ जो है, पहले नहीं लगाते थे, अब लगाने लग गए हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। तो ये शिफ्ट तो है, पॉजिटिव शिफ्ट है, और उसका कारण मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया भी है। क्योंकि व्हेन अ पर्सन सीज कि वहाँ आग लग गई या ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, मगर डायरेक्शन नहीं मिल पाता। थोड़ी डायरेक्शन की कमी है, जो डायरेक्शन ज़रूरत है। तो हर जगह हर आदमी नहीं पहुँच सकता। तो वो हमको लगता है कि राइट सर. हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या मिनिमम, क्योंकि जो रेगुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल टॉक्स में जाता हूँ, कि ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, जो मिनिमम है उतना कर लो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हो रहा है, एक्सेप्ट करते हैं लोग, यस सर, कर यस. रहे हैं, ये है, पॉजिटिविटी है। So, sir, how can we make safety training and communication more engaging and relatable to everyday people? ये वही अभी मैंने जो बोला कि भाई आप OTT चैनल्स और ये सब चीज़ को आप यूज़ कीजिए, और डायरेक्टली सेफ्टी की बात करेंगे कोई नहीं आएगा, सटल वे में आप घुमा के बात करेंगे तो वो समझ लेगा। हमारे यहाँ का आदमी डायरेक्ट नहीं समझता है, घूम फिर के बात कर लो तो उसको समझ में आ जाता है। इसमें गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है, मगर वो डायरेक्टली हर चीज़ बताता है कि ऐसे हो जाएगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको कहीं ना कहीं उसको लगे कि यस, ही इज़ टेलिंग फॉर माई गुड। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको करना है, मेरा क्या फ़ायदा है।
इसमें बहुत काम होना है, बहुत जो ट्रेनर्स हैं उनको भी समझना है और ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, मगर हो रहा है। मैं बॉम्बे जाता हूँ, साउथ में जाता हूँ, कई जगह, इवन यू आर इन नोएडा में अच्छी जगह ये हो रहा है। तो ये शुरू हो गया, अब ऊपर से नीचे आती है चीज़, आ रहा है, फर्क पड़ रहा है। Right, sir. Okay. सर आई वाज सेइंग कि स्कूल्स में तो जैसे हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें वी कुड हैव एन इवेंट कि भाई सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है, घर में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन व्हेन दे गो बैक होम दे टेल देयर पेरेंट्स कि पापा फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है हमारे पास या समथिंग नहीं है। तो विल दैट बी अ हेल्पफुल थिंग? इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल, इट इज़ हैपनिंग। आई नो ओके। अ फ्रेंड्स चाइल्ड, उसने अपने पेरेंट्स से कह के हमसे एक्सटिंग्विशर मांगा है, फायर ब्लैंकेट मांगा है, उसकी फिल्म भी बनाई क्योंकि उसको स्कूल में ट्रेनिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट एटलीस्ट इन सिटीज़ वो चाहते हैं कि हमको कोई आगे ट्रेनिंग दे। थोड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनर्स की कमी है जो सही ट्रेनिंग दे सकें। वो फायर डिपार्टमेंट करता है, मगर फायर डिपार्टमेंट कितना कर सकता है, वो अपनी कोशिश पूरी करता है करने की। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दिस थिंग। तो जो हमको कमी लगती है कि वी आर शॉर्ट ऑफ गुड ट्रेनर्स हु कैन गो एंड टीच इन स्कूल्स। उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, आई हैव पर्सनली सीन इट। और हम किसी स्कूल से बात करते हैं तो स्कूल वाले इंटरेस्ट लेते हैं। अब पहले बिल्कुल नहीं लेते थे, अब लेने लग गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें काम ओके। होना बाकी है, मगर इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेनिंग कौन देने जाएगा? आदमी कहता है भाई व्हाई शुड आई पुट इन माय। तो और अभी ऐसे बहुत एनजीओज नहीं है, मगर हमने देखा बॉम्बे वगैरह साइड में, बेंगलोर में बहुत से एनजीओज ऐसे आ गए हैं, वो बहुत काम करते हैं, इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत ट्रेंड हैं। और मैंने तो कोई पढ़े भी एक्सीडेंट हुए बॉम्बे में, बच्चों ने बचा लिए पेरेंट्स को क्योंकि उनकी स्कूल में ट्रेनिंग थी। तो अभी ये टियर 2 सिटीज़ में और इसमें कमी है। ओके। और जो लोअर एंड वाले स्कूल हैं उसमें कमी है, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। राइट। ओके सर। So, sir, finally, what message would you like to share with our listeners to inspire them to take personal ownership of safety at home, work, and everywhere? देखो, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सेफ्टी इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको सेफ्टी लेनी पड़ेगी। कुछ सेफ्टी ऐसी होती हैं कि भाई आप सड़क में जा रहे हैं, किनारे गिर जाओगे तो रेलिंग होनी चाहिए, मगर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो गई हैं जिसकी हमको सेफ्टी के समझना है। जैसे फायर के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना? घर में आपके हाइट्स हो गई हैं, तो उसमें आपके गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो गया है, तो उससे इलेक्ट्रिक्यूशन के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी रिस्क बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये इसकी जो बचने का, ये तो सबको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसको समझ लो जैसे खाना खाते हो, वैसे ही भाई सेफ्टी सीखो, करो। जैसे अब जैसे गाड़ी में जब से ये हो गया कि गाड़ी चलेगी नहीं जब तक आप वो लगाओगे नहीं बेल्ट, तो आप, हमारी भी आदत हो गई है बैठते ही जो है सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो वो चीज़ की ज़रूरत है कि सेफ्टी शुड बिकम अ माइंडसेट, एक आदत होनी चाहिए। और ये कोशिश करें क्योंकि इसमें अपना ही बचाव है, किसी दूसरे का बचाव नहीं है सेफ्टी से। Right. Thank you, sir, for your time today. Safety वेलकम। is not the responsibility of a few, it's a shared duty of everyone. As Kishan sir reminded us today, awareness and action go hand in hand in building a safer world. Whether it's a home, on the road, or in our workplace, every small precaution and every informed decision can save life. The goal is not just to follow safety standards, but to live with them, to have a mindset shift. Let's all pledge to be more aware, more responsible, and more proactive because safety truly begins with you. Thank you and have a nice day. Take care. Bye bye. थैंक यू, वेल, यू आर वेलकम।